میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو کپڑے اور باندھ سے بنی اس جھگی میں ہی پایا۔ یہ ہماری جھگیوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ہمارا قبیلہ رہتا تھا۔ ہماری بستی میں کوئی کچرا چننے کا کام کرتا تھا تو کوئی پیشہ ور فقیر تھا۔ کسی نے موچی کے کام کی آڑ میں تعویذ دھاگے کی دکان کھول رکھی تھی۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ہر جھگی میں پیسہ بکسوں کے اندر محفوظ رکھا جاتا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی۔ میں چھوٹی سی تھی مگر یہ سوچتی تھی کہ ان کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو یہ سب اتنی گندی جگہ پر کیوں رہتے ہیں؟ اور جب مجھے سوال کا جواب ملا تو ایک بھیانک حقیقت بجلی کی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہم بستی کے اندر ایک جھگی میں رہا کرتے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی 3 تھیں جو میری ہی طرح گندے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے رہتی تھیں۔ میرے ابا اور اماں کوڑا چننے کا کام کرتے تھے۔ ہماری جھگی میں سامان کے نام پر چند چیزیں تھیں، 2 پرانے بڑے بڑے بکسے اور ایک چھوٹا بکسا تھا جس میں اماں، ابا اور ہم 4 بہنوں کے کپڑے رکھے تھے۔ ایک پتیلی، 2-4 پلاسٹک کی پلیٹیں اور گلاس تھا اور بستروں کی جگہ کاغذی بڑے بڑے گتے زمین پر بچھے تھے جن پر کپڑوں سے بھرے ہوئے سرہانے رکھ کر ہم سو جاتے۔ ابا اور اماں سارا دن جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر سے کاغذ، پلاسٹک، بوتلیں اور ہر کام کی چیز چن لیتے تھے جو بیچ کر گزر بسر کی جا سکے۔ ہماری بستی شہر سے کچھ باہر ایک بڑے سے میدان میں تھی۔ یہ جگہ کسی بہت امیر بندے کی تھی اور کافی عرصے سے خالی پڑی تھی۔ بعد میں سنا تھا کہ زمین پر فیکٹری بنانے کا منصوبہ چل رہا ہے، مگر ابا بتاتے تھے کہ منصوبہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اس لیے بستی والوں کو کوئی فکر نہیں تھی، اور اگر مالک زمین خالی کرواتا بھی تو ہم جیسوں کا کون سا کوئی ایک ٹھکانہ ہوتا تھا۔ ہماری جھگیوں کے سامنے ایک نہر گزرتی تھی، اسی نہر پر ہماری زندگی کا دار و مدار تھا۔ عورتیں نہر کے کنارے بیٹھ کر برتن اور کپڑے دھو لیتیں اور ادھر ادھر لگے درختوں کی شاخوں اور جھاڑیوں پر کپڑے پھیلا کر سکھا لیے جاتے تھے۔ نہانے کا کام بھی اسی نہر کے پانی سے ہوتا تھا، اور ہم کون سا روز نہاتے تھے۔ اماں ابا کو کتنے کتنے دن نہائے بغیر گزر جاتے تھے، اور ہم 4 بہنوں کو بھی اماں کئی دن بعد نہلاتی۔ بستی کے کافی بچے روز نہر میں نہانے جاتے تھے، مگر میں اور میری بہن ڈرتے تھے۔ باقی 2 بہنیں تو بہت چھوٹی تھیں۔ غربت تو ہمارے حلیے اور چہروں سے جھلکتی تھی، مگر پیٹ کا دوزخ کون دیکھتا ہے جب کسی کو چہرے ہی نظر نہ آئے۔ اماں اور ابا سارا دن سڑکوں اور گلی کوچوں میں لگے کوڑے کے ڈھیر سے اپنی مرضی کی چیزیں چن کر واپس لاتے۔ پھر اماں اینٹوں کے بنے چولہے پر 2-4 روٹیاں ڈال لیتی، سالن کے نام پر کبھی 2 پیاز تھوڑے سے گھی میں تل کر اوپر نمک مرچ ڈال لیتی، تو کبھی سل بٹے پر چٹنی پیس کر روٹی ہمیں دے دیتی۔ وہ 2-4 روٹیاں ابا اور اماں کے لیے پوری نہیں پڑتی تھیں، کیونکہ اس میں ہم 4 کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ کسی دن اگر میں یا میری بہنیں اضافی روٹی مانگ لیتی تو ابا یا اماں اپنے حصے میں سے ہمیں دے دیتے۔ تب ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، کبھی صاف ستھرے پھل نہیں چکھے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی اماں کہیں سے گرا پڑا خراب پھل لے آتی اور اس کو کاٹ کر جو تھوڑا سا حصہ کھانے کے لائق نکلتا وہ ہمیں کھلا دیتی۔ اس سے تو ہمارے منہ کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا تھا، بلکہ اور خراب ہو جاتا تھا۔ اور ایسے ہی سڑی ہوئی یا باسی سبزیوں سے صاف سبزی نکال کر تھوڑی سی پکا لیتی، جس میں گھی کم اور پانی زیادہ ڈالتی تھی۔ بستی میں کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں تھا، سب کا تقریباً ایک سا تھا، مگر کچھ جھگیوں میں ٹی وی چلتا تھا جو ہم بہنیں جا کر بڑے شوق سے دیکھتی تھیں۔ زیادہ مشکل تو اس وقت بڑھ جاتی جب موسم اپنے جوبن پر ہوتا۔ شدید گرمی میں ایسے لگتا جیسے سورج کی تپش ہمیں بھی انڈے کی طرح پکا دے گی، اور بے انتہا سردی ہمارے جسموں کو آری کی طرح چیرتی تھی۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی رضائی تھی جو ہم 6 لوگ آڑی ترچھی کر کے بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ کبھی پیر ننگے ہو جاتے تو کبھی سائڈ پر لیٹے ابا اماں رضائی کی حد سے باہر نکلنے لگتے۔ اور برسات تو جیسے ہماری سب سے بڑی دشمن تھی۔ کسی بھی موسم کی بارش ہوتی ہماری جان عذاب میں آ جاتی تھی، زمین پر پانی اور کیچڑ ہو جاتا اور ہمارا سونا بھی حرام ہو جایا کرتا تھا۔ میں بڑی ہو رہی تھی، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی میرے اور دل و دماغ میں کئی سوال آتے۔ میں اللہ سے شکوے کرتی اور کبھی کبھی اماں کے سامنے رونے لگ جاتی کہ ہماری زندگی ایسی کیوں ہے، اور اماں خاموشی سے میرا منہ تکتی رہتی یا کسی دن مجھ پر غصہ کرنے لگ جاتی۔ وقت گزرتا رہا، ہمیں اس سرد و گرم کو سہنے کی عادت ہو چکی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا سایہ ہو تو بچے کڑی دھوپ سے بچے رہتے ہیں۔ یہ سچ تھا، اور اس حقیقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ابا نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ وہ دن کسی منحوس سائے کی طرح ہماری زندگیوں میں آیا تھا۔ ابا روز کی طرح کچرا چن رہے تھے کہ ایک بڑی سی گاڑی کسی آندھی طوفان کی طرح آئی اور ابا کو ٹکر مار دی۔ گاڑی کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر ابا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور اماں ابا کے بے جان وجود کے پاس بیٹھی رونے لگ گئی، اور پھر اس کے بعد روزانہ اکیلی ہی کام پر جانے لگی۔ آخر 4 زندگیاں اس کے ساتھ جڑی تھیں۔ میں اس وقت 16ویں سال میں تھی جب ابا کا انتقال ہوا۔ میری بہنیں بالترتیب 14، 12 اور 10 سال کی تھیں۔ چھوٹی دونوں بہنیں بھی اماں کے ساتھ جانے لگیں تاکہ زیادہ چیزیں اکٹھی کی جا سکیں،
मगर पूरे दिन की ख्वारी के बाद कभी 100 तो कभी 200 हाथ में आते थे। अम्मा बहुत थकने लगी थी और बात बात पर गुस्सा करने लग जाती थी। मैं अब खाना पकाने भी लग गई थी और नहर पर जाकर कपड़े और बर्तन भी धो लिया करती थी। नहर किनारे कपड़े या बर्तन धोते हुए वहां से गुजरती लड़कियों को देखती तो दिल महसूस कर रह जाती। बहुत खूबसूरत साफ सुथरी लड़कियां, कीमती कपड़े पहने, किसी के जूते मुझे पसंद आ जाते तो किसी का सूट दिल को भा जाता था, मगर मैं सिर्फ उनको आता जाता देखकर आहें ही भर सकती थी। वहीं रोड से बच्चे स्कूल जाने के लिए गुजरते थे। सफ़ेद साफ सुथरे यूनिफॉर्म में वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हमने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, मगर उनको देखकर मेरा दिल बहुत चाहता कि मेरी छोटी बहनें भी स्कूल जाया करें। काश ऐसा हो पाता और काश वैसा हो जाता। बस यही सब सोचते सोचते मैं काम कर लेती और जब अम्मा और दोनों बहनें वापस आती तो वहीं गिनती की 4 रोटियां पकाकर मिल बांट कर खा लिया करते थे। मगर अब हम बड़े हो गए थे तो रोटियां कम पड़ती थीं, पेट नहीं भरता था तो अपने अपने सिरहाने पर लेटकर आंसू पी लिया करते थे। एक दिन अम्मा काम से वापस आई तो मुझे कहने लगी कि एक अस्पताल में सफाई करने वाली मासी की ज़रूरत है। मुझे किसी ने बताया था तो मैंने वहाँ बात की है। अगर वो नौकरी मिल गई तो हालात में कुछ बेहतरी आ जाएगी। मैंने अम्मा की बात सुनी तो दुआ करने लगी कि अम्मा को नौकरी मिल जाए। पर मैंने अम्मा से कहा कि अगर तू नौकरी करेगी तो महीने बाद पैसे मिलेंगे, फिर हम पूरा महीना क्या खाएंगे। मेरी बात सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई और कहने लगी कि कल से छोटी तीनों बेटियों को ले जाती हूँ और ज़्यादा कचरा छान लिया करेंगे ताकि कुछ पैसे बचा कर रखे जा सकें, और अगर नौकरी लग जाती है तो वो महीना खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद महीने भर का हिसाब किताब रख लेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। अगले 2-3 दिन अम्मा अस्पताल से नौकरी के जवाब का इंतजार करती रही, मगर कोई खैर की खबर ना आई। आखिर 5वें दिन मालूम हुआ कि सफाई के लिए किसी को रख लिया है, मगर वहीं अस्पताल का कचरा उठाने के लिए किसी काम वाली की ज़रूरत है और तनख्वाह महीने बाद मिला करेगी। अम्मा ने फ़ौरन हाँ कर दी। इस तरह अम्मा को 6000 तनख्वाह पर यह नौकरी मिल गई। 8000 के हिसाब से यूँ तो हर रोज़ के 200 रुपये बनते थे, मगर हमारे लिए ये भी बहुत थे, क्योंकि हर रोज़ अम्मा और मेरी तीनों बहनें सारे दिन के बाद 100-150 ही कमा पाती थीं। अब अम्मा महीने का 6000 कर लेगी और हर वक्त तो अस्पताल में मौजूद नहीं रहना था। अम्मा को एक दिन में तो 2 मरतबा कचरा उठाना था। कचरे में से काम की चीज़ें अलग करके बेच सकती थी और बाकी का वक्त अपना काम कर सकती थी। अम्मा ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो सुबह के अस्पताल अकेली चली जाती और कचरा उठाकर बड़े मैदान में बाकी कचरे के ढेर पर फेंकती। उसमें उसके 3 चक्कर लगते थे और इस दौरान उसे कोई ऐसी चीज़ मिलती जो अलग से बेची जा सकती थी तो वो उसे अलग जगह पर रख देती और फिर दूसरा चक्कर शाम को 6 से 7 बजे लगाती थी। तब हल्का हल्का अंधेरा हो जाता था। जो सामान अम्मा अलग करके रखा करती थी वो भी रोज़ के रोज़ बेच देती और बाकी वक्त में मेरी बहनों के साथ पहले की तरह मुख्तलिफ कूड़े के ढेर पर अपना काम करके दिहाड़ी बना लेती थी। इस तरह अब हम 5 माँ बेटी के हिस्से में 1-1 रोटी रोज़ आने लगी थी। अम्मा को अस्पताल में काम करते हुए 1 महीना गुजरा तो पहली तनख्वाह मिली और उस दिन अम्मा ने ताज़ा सब्जी खरीदी, घी का पैकेट लिया और ऐसे ही ज़रूरत की कुछ चीज़ें और आटे का थैला लिया और हमने पेट भर के खाना खाया। मगर ये सब लेने के बाद अम्मा के पास सिर्फ 1000 ही बचा था, जो अम्मा ने बक्से में कपड़ों की तह में रख लिया कि किसी बुरे वक्त के लिए कुछ रुपए पैसे रखने चाहिए। रोज़ की तरह ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मगर वो एक दिन कुछ अलग सा था जब पहली बार अम्मा बहुत खुश नज़र आ रही थी। उस रात जब अम्मा अस्पताल का कचरा उठाकर वापस आई तो उसे मामूल से ज़्यादा वक्त लग गया था। पहले तो वो 8 बजे तक आ जाती थी, मगर उस रात तो 11 बजे आई। हम चारों बहनों का परेशानी से बुरा हाल था। इंतज़ार करते करते मेरी बहनें सो गईं और मैं अकेली ही बेचैनी से अम्मा का इंतज़ार कर रही थी। फिर अम्मा आ गई। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। आते ही जल्दी से अम्मा ने 1 गिलास पानी मांगा और मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं बैठी तो अम्मा ने एक पोटली निकाली और उसमें से 1000 के नोट निकालने लगी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जल्दी से पूछा कि अम्मा इतने सारे नोट कहाँ से लाई हो। अम्मा ने फ़ौरन मुंह पर उंगली रखकर मुझे आहिस्ता बोलने का इशारा किया और कहने लगी कि अरे लड़की, हमारे तो वारे न्यारे हो गए, समझो अब हम सुकून से जिएंगे और मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने ना समझे के अंदाज में अम्मा से पूछा कि वो कैसे, खैर तो है, कहीं डाका तो नहीं डाल लिया। अम्मा ने कहा कि ये पैसे संभाल कर बक्से के अंदर कपड़ों में छुपा कर रख दो और अभी 2-4 दिन इंतज़ार करो, फिर बताऊंगी। मैंने अम्मा से पैसे पकड़े और बक्से में रखकर खामोशी से अम्मा के पास लेट गई। मगर पैसों का सोच सोचकर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी और अम्मा भी करवटें बदल रही थी। यकीनन वो भी इसी वजह से बेचैन थी। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। अम्मा देर से आई मगर अपने साथ हज़ारों के नए नकोर नोट लाई। मैंने वो भी अम्मा के कहने पर बक्से में रख दिए और फिर अगले दिन हमारी झुग्गी में ईद थी, क्योंकि अम्मा उस दिन गोश्त लाई थी और हम सालों बाद गोश्त खा रहे थे। इतना लजीज खाना मेरी बहनों ने ज़िंदगी में पहली बार खाया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अम्मा ने कहा कि अगर हम ऐसे खाएं पिएंगे या अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो कबीले वाले हमें नज़र लगा देंगे। हालांकि वो सब खुद अंदर ही अंदर बड़े पैसे वाले थे, मगर हमें कौन सा कोई पूछता है, इसलिए हम ये बस्ती ही छोड़ देते हैं
और फिर चौथे दिन अम्मा ने किसी किराए के घर का इंतजाम कर लिया और हमें सामान बांधने को कहा। बस्ती में कह दिया कि हम अपने किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। सामान के नाम पर हमारे पास सिर्फ कार्ड का बाड़ था और चंद फटे पुराने कपड़े थे। वो सब कुछ लेकर अम्मा के साथ किराए के मकान में उसी शाम पहुंच गए। जिंदगी में पहली बार हमने पक्का मकान अंदर से देखा था। उस मकान में 2 कमरे थे, बरामदा और किचन भी था, और बाथरूम देखकर मेरी बहनें फौरन नहाने लग गई। मेरी अम्मा तो पक्के फर्श पर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि जल्दी से किचन में जाकर सामान निकाल लो। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मा कौन सा सामान? अम्मा कहने लगी कि जाओ तो सही, अंदर जाकर देखो। मैं जब किचन में गई तो वहाँ आटा, चावल, दालें, तमाम मसाले और भी बहुत कुछ पड़ा था। अम्मा और हम चारों बहनें इतनी खुश थीं कि कभी जिंदगी में नहीं हुई। अम्मा ने हमारे लिए खाना बनाया और हमने बड़े मज़े से वो खाना खाया। उससे अगले दिन अम्मा काम पर नहीं गई बल्कि हमें लेकर बाजार गई और हमने अपने लिए 2-2 जोड़े नए खरीदे, जूते लिए और अपनी अपनी पसंद से शैम्पू, साबुन और भी ऐसी कई चीज़ें खरीदी। घर आकर अम्मा ने ज़बरदस्त गोश्त का सालन बनाया और हमने खूब पेट भर के खाना खाया। उससे अगले दिन अम्मा काम पर अस्पताल गई और मेरी बहनें मेरे पास ही घर में रहीं। अब उनको काम पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। शाम को अम्मा आई तो वापसी पर घर के लिए कुछ फर्नीचर ले आई जो गाड़ी पर था, और 2 आदमी सामान उतारकर घर में रख रहे थे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना न था। अब घर में 2 बड़े बेड, 1 अलमारी और मेज़, कुर्सियाँ और बहुत अच्छे बर्तन भी मौजूद थे। हम बहनें नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती तो हमें अपना आप ही अजीब सा लगता था। ऐसे ही किराए के घर में आए हमें 1 महीना गुजर गया। अब अम्मा हफ्ते में 2-3 मरतबा बहुत सारे पैसे लाने लगी और वो पैसे अलमारी में जमा करके रख देती। मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि आखिर इतने पैसे अम्मा के पास कैसे आते हैं। मैंने पहले भी पूछा था मगर अम्मा टाल गई थी, पर अब मेरे बार बार पूछने पर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि अस्पताल का जो कचरा वो उठाती है वहाँ से हर दूसरे दिन कोई ऐसी कीमती चीज़ मिल जाती है जो हज़ारों बल्कि लाखों में बिकती है। मैं अम्मा की बात सुनकर इतनी हैरान हुई कि आखिर कचरे में से ऐसा क्या मिलता है अम्मा को जो वो हज़ारों के कितने ही नोट अपने साथ लाती रहती है। इस घर में आए अब हमें 3 महीने हो गए थे। एक दिन अम्मा ने हमसे कहा कि सब तैयार हो जाओ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है तुम सबको। हम चारों बहनें खूब तैयार शेयार होकर अम्मा के पास आ गईं और वो हमें टैक्सी में बिठा कर एक बहुत ही शानदार इलाके में ले गईं जहाँ नहायत खूबसूरत कोठियाँ थीं। एक कोठी के सामने टैक्सी रुकी तो हम उतरकर अंदर चले गए। वो इस कदर शानदार महल नुमा कोठी थी जिसमें दीवारों पर शीशे और कीमती पेंटिंग्स लगी थी। उसका फर्श चमक रहा था और फर्नीचर से भरा हुआ घर था ये। हर जगह सोफे, कुर्सियाँ, मेज़ और जाने क्या कुछ पड़ा था। अम्मा ने हमें कहा कि जाओ अपने लिए एक एक कमरा पसंद कर लो, ये हमारी अपनी कोठी है, आज से हम यहीं रहेंगे और कोई हमें कभी यहाँ से निकाल नहीं सकेगा। अम्मा का इतना कहना था कि खुशी से हमारी चीखें निकल गई। हमने तो कभी ख्वाब में भी ऐसे घर नहीं देखे थे और अम्मा कह रही थी कि ये हमारा घर है। हम भाग भाग कर कमरे देखने लगी। हर कमरे में बेड, अलमारी, टीवी, हर चीज़ थी। हम चारों ने एक एक कमरा पसंद कर लिया तो अम्मा ने अपना कमरा पसंद किया। उसके बाद हम किचन में गए। बाथरूम में बड़े बड़े टब लगे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारा इतना आलीशान घर कैसे हो सकता है भला, और हम यहाँ अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे। उसके बाद अम्मा ने हमें बाजार जाने का कहा। बाजार से बहुत सारी खरीदारी के बाद हम वापस आ गए, खाना खाया और अम्मा के कमरे में बातें करने बैठ गए। वो रात हमारी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत रात थी जब हम पहली बार नर्म मुलायम मखमली बिस्तरों पर सो रहे थे। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई और शायद ही हम में से कोई सोया होगा। मैं सबसे बड़ी थी और अब अकल और शऊर के इस दौर में दाखिल हो गई थी जहाँ मुझे सही और गलत का फ़र्क महसूस हो। शुरू में कुछ दिन तो मुझे ये मुफ्त का रुपया पैसा और ऐशो आराम बहुत अच्छा लगा, मगर फिर मुझे अजीब अजीब से ख्याल सताने लगे और तजस्सुस तो अपनी जगह बढ़ता ही जा रहा था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ अम्मा को कूड़े से मिलती थी जो हज़ारों और लाखों रुपए अम्मा को मिल जाते थे। मैंने अम्मा से इस बारे में दोबारा जिक्र नहीं किया, मगर मैं अब अम्मा की हर हरकत और बात पर नज़र रखने लगी थी। वो रोज़ कितने पैसे लाती थी और हफ्ते में 2 मरतबा जब ज़्यादा पैसे लाती तो मैं दूसरे दिन अम्मा के काम पर जाने के बाद वो गिना करती थी और हैरत से दंग रह जाती जब मुझे गिनती भूल जाया करती मगर नोट ख़त्म नहीं होते थे। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस राज को जान कर रहूँगी और फिर मुझे एक मौका मिल ही गया। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अम्मा को सख्त बुखार हो गया और पूरा दिन पूरी रात अम्मा बुखार से नढाल पड़ी रही। तो अगली सुबह मुझे अपने पास कमरे में बुलाकर कहने लगी कि आज तू मेरी जगह काम पर चली जा, क्योंकि आज बहुत ही अहम काम है। अगर ड्यूटी पर न गई तो मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अंधा क्या चाहता है 2 आंखों के सिवा। मुझे ये मौका नादिर महसूस हुआ और मैं झट से तैयार होकर अम्मा के अस्पताल पहुंच गई। वहाँ स्टाफ ने बताया कि पिछले मैदान में कूड़े करकट का ढेर लगता है, वहीं अम्मा काम करती है। मैं थोड़ा घबरा भी रही थी और सोच भी रही थी कि वहाँ क्या होगा। जब मैं पीछे वाले मैदान की तरफ पहुंची तो वहाँ वाकई कचरे का एक ढेर पड़ा था। वहाँ उस वक्त कोई नहीं था क्योंकि अम्मा की ड्यूटी का वक्त था। मैं कचरा उठाकर पास खड़ी गाड़ी में डालने लगी और अम्मा के कहने के मुताबिक
लाल रंग की बड़ी बड़ी बाल्टियों के पीछे पड़े कचरे पर कीमती चीज जो देखने लगी, मगर जब वहां पहुंची तो मुझे जो नजर आया उससे मेरी रूह लरस गई। एक सफेद रंग का कपड़ा था जिसमें लाल निशान थे और वो ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े के अंदर कोई बच्चा हो। मैंने डरते डरते थोड़ा सा कपड़ा हटाया तो वाकई उसमें एक जिंदा बच्चा पड़ा था। मैं कांपने लगी। अचानक वहां खड़ी बड़ी सी गाड़ी में से एक आदमी की आवाज आई कि जल्दी कर, वहां खड़ी क्या देख रही है, जल्दी उसे उठा के ले आ और गाड़ी में बैठ जा। मैंने डरते हुए जल्दी से वो बच्चा उठाया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आधा घंटा चलती रही, फिर एक जगह रुकी और उस आदमी ने गाड़ी से उतरकर किसी से बात की। वो एक बिल्कुल सुनसान जगह थी। फिर बात करने के बाद मुझसे बचा लिया और कुछ देर बाद वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। 1 घंटे बाद उसने मुझे वापस मेरे घर वाली गली के सामने उतार दिया और मुझे एक लिफाफा थमा दिया और कहा, जाकर अपनी अम्मा को दे देना। मैं थके थके कदमों से घर में दाखिल हुई। मुझे ना तो समझ आ रही थी कि बच्चा कौन था, कचरे पर कैसे आया, और ना मुझे यकीन आ रहा था कि अम्मा ये काम करती थी। मैं अम्मा के कमरे में चली गई। वो फटाफट उठकर बैठ गई। बुखार उतर चुका था। मुझसे कुछ पूछती इससे पहले ही मैंने लिफाफा उसके सामने कर दिया। मुझसे लिफाफा लेकर अम्मा ने खोला तो उसमें हजार के कई नोट थे। अम्मा ने पूछा, कोई मसला तो नहीं हुआ? मैंने अम्मा से कहा कि कोई मसला नहीं हुआ, मगर आखिर ये सब क्या था? अम्मा मेरे पूछने पर बताने लगी कि जब वो पहली बार अस्पताल गई थी तभी वहाँ के वर्कर्स ने अम्मा से बात कर ली थी। कचरे पर जिंदा बच्चा या मुर्दा बच्चा जो किसी वजह से मर जाए और अस्पताल पर बात ना आए तो ऐसे बच्चों को कपड़े में लपेटकर कचरे पर रख दिया जाता है। वहाँ से कूड़ा उठाने वालों की मदद से वो बच्चा अगर जिंदा हो तो किसी और को आगे बेच देते हैं, जिसका सारा पैसा आपस में हिस्सों में बांट लिया जाता था, और जो बच्चे मर जाते थे उनकी लाश को छुपाकर कहीं ठिकाने लगाने के पैसे मिलते हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया और रोना भी आ रहा था। मैं एकदम चीख कर बोली कि बच्चे बेचने की चीज हैं। मेरी तेज आवाज सुनकर अम्मा घबरा गई और मेरा हाथ थाम कर कहने लगी कि हम कौन सा किसी फकीर या डाकू को बेचते हैं, बल्कि वो तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप या माएँ उन्हें पैदा नहीं करना चाहते। हम तो उनको बचाकर किसी ऐसे जोड़े के हवाले कर देते हैं जिनको बच्चे की जरूरत होती है। बस इस सारे काम में दोनों पार्टियों से पैसा मिलता है। अम्मा की बात सुनकर मैंने अम्मा से पूछा कि वो सच कह रही है ना? तो अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई। मगर मैंने अम्मा से कहा कि चाहे अपनी तरफ से तुम भला करती हो, मगर ये है तो गलत ही, क्योंकि बच्चे को इस तरह चोरी छुपे ले जाना और पैसे लेना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। अम्मा ने मुझे डांट दिया कि तू अभी बच्ची है, इन बातों में ना पड़। उसके बाद मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं इस काम की खबर अस्पताल के मालिक को कर दूं या फिर पुलिस को बता दूं, मगर मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर थी, इसीलिए चुप हो गई। पर मेरे दिल को किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। अब तो घर में आने वाले रुपया पैसा भी मुझे अच्छा नहीं लगता था और इन पैसों से पका हुआ खाना मुझे जहर लगने लगा था। कुछ दिन बाद मेरी सबसे छोटी बहन को तेज बुखार हुआ। वो 12 साल की थी, सबसे छोटी और लाडली थी। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता था। दवा भी उसे अच्छे डॉक्टर से लेकर दे रही थी अम्मा, और उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, मगर उसकी हालत संभलने की बजाय बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर के कहने पर उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया और वहाँ उसके काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए, मगर तमाम रिपोर्ट्स ठीक आने के बावजूद उसकी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही थी। वो सूख कर कांटा होती जा रही थी। अम्मा अपना सब काम धंधा छोड़कर उसके सिरहाने से लगी बैठी थी। इस दौरान अम्मा को एहसास हुआ कि बच्चे माँ बाप के लिए कितनी बड़ी नेमत हैं और इंसान अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा ने अपने गुनाहों की तौबा कर ली और अल्लाह ने सच्चे दिल से की गई तौबा को ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि अम्मा को वो गुनाह करने से रोकने का जरिया भी बना दिया। दरअसल अम्मा ने चोरी छुपे सारे मामले की खबर अस्पताल के मालिक तक पहुंचा दी और उन्होंने फौरी रद्द अमल दिखाते हुए कार्रवाई की, और इस तरह यह गंदा काम अस्पताल से ख़त्म हो गया। अम्मा ने किसी को अपना या किसी का नाम नहीं बताया था, बस खामोशी से वो नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह एक साफ सुथरा काम शुरू कर दिया। इस दौरान मेरी बीमार बहन की तबीयत बेहतर होने लगी और वो जल्द ही अस्पताल से घर आ गई, मगर अम्मा ने उसके घर आने के बाद हमारी कोठी बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया और बाकी सारे पैसे में से आधा हमारी शादियों के लिए रखा और आधा एक यतीम खाने में फलाही कामों के लिए दे दिया। अम्मा के साथ साथ हम सब बहनों को भी ये सबक मिल चुका था कि किसी का बुरा करके और हराम कमाई से आप चाहे जितने भी महल बना लें, मगर बुरे काम का नतीजा हर हाल में भुगतना पड़ता है, और ऐसे में वो पैसा किसी काम आता है ना ही दौलत। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हमें ठीक से समझने का वक्त तक ना मिला। इस सारे वाक़े को 1 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर अब हमारी ज़िंदगियों में सुकून है। अम्मा की नई नौकरी अच्छी है, गुजारे लायक तनख्वाह मिल जाती है और 2 माह बाद मेरी और मुझसे छोटी बहन की शादी है। मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने घरों में अब खुश रहेंगे, क्योंकि हमने बुराई का रास्ता छोड़कर सिर्फ सच और हक का रास्ता अपना लिया था।